ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی تعلیم، اور جہالت اتنی گہری کہ لوگ سورج کو خدا سمجھنے لگے۔ Sun God, hear our voices, banish the shadows۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ وہ انسانوں کو لکھنا اور حساب سکھاتے تھے۔ لیکن ادریس علیہ السلام دنیا کو بدلتے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ان دونوں انبیاء کے درمیان کتنا وقت تھا؟ کیوں ان کا ایرا سائنٹیفک طور پر ایک سیویلائزیشن کا حصہ لگتا ہے؟ اور کس طرح ایک زمانہ جہاں لوگ لکڑی اور پتھر سے کام چلاتے تھے، وہ اچانک رائٹنگ سسٹم، ٹیلرنگ، ایسٹرونومی اور آرگنائز سٹیز کا آئیڈیا پیدا ہوا؟ چلو وقت کی سب سے پرانی دھول کو ہلا کر ایک ایسی کہانی شروع کرتے ہیں جو آج تک انسانیت کی بنیاد پر نقش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کی ذمہ داری آتی ہے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر۔ شیس علیہ السلام نے انسانیت کو تمیز اور ہدایت کا پہلا سکول دیا۔ ان کے زمانے میں لوگ ابھی پریمیٹو تھے، فارمنگ شروع ہو رہی تھی، ٹولز بہت بیسک تھے اور تعلیم کا کانسیپٹ زیرو تھا۔ دوستو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کیا ایک ہی ایرا کے لوگ تھے یا ایک ہی ایرا کے نبی تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل قریبی بعد والے نبی تھے۔ جس طرح ایک والد اپنے بیٹے کو وصیت دے کر جاتا ہے، شیس علیہ السلام اسی وصیت کو اپنی قوم تک پہنچانے والے تھے۔ لیکن ادریس علیہ السلام وہ اس سلسلے میں کافی بعد آتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق سیکوینس کچھ یوں تھا: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، انوش، کینان، ملاحل، یارڈ اور ادریس علیہ السلام۔ مطلب شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 6 پوری نسلیں گزری۔ دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پرانے زمانوں میں ایک نسل کا مطلب ہوتا تھا 100، 150، کبھی 200 سال تک کا ایک دور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور حضرت شیس علیہ السلام کے وقت سے بہت دور تھا۔ ان دونوں کے بیچ زندگی کے طریقے بدل گئے، انسان کی عادتیں بدل گئی اور سب سے بڑھ کر فتنے کی تہذیب بڑھ کر اندھیرے کی طرف پھیل گئی۔ تو جب ہم حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں تو یاد رکھو وہ شیس علیہ السلام کے فوراً بعد نہیں آئے تھے، یعنی انسانی تاریخ نے ایک بہت لمبا موڑ لے کر پھر ایک نبی کو پیدا ہوتے دیکھا۔ دوستو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد کچھ نسلیں ٹھیک رہی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی گریڈ دوبارہ اٹھنے لگی۔ سب سے پہلی کرپشن قابیل کی نسل یعنی کائن لائنیج سے آئی۔ روایت کے مطابق قابیل کی نسل بہت ایگریسو تھی، ہم نے انہیں لوٹ لیا۔ اور انہوں نے گناہ کو عزت سمجھنا شروع کر دیا۔ اور شیس علیہ السلام کی نسل یعنی ان کے نیک لوگ روشنی کی طرف تھے، تمیز، ایمانداری اور عبادت۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ شیس علیہ السلام کی نسل بھی دھیرے دھیرے کرپٹ ہونے لگی اور اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آتی ہے۔ اسلامک نریشنز اور اینشنٹ ہسٹری اسکالرز دونوں ایک بات پر ایگری کرتے ہیں، ادریس علیہ السلام ور دا فرسٹ ہیومن ان ہسٹری ٹو رائٹ اے اسکرپٹ۔ جی ہاں، رائٹنگ یعنی قلم یعنی سیویلائزیشن کی فاؤنڈیشن۔ اس لیے قرآن نے ان کو ادریس کا لقب دیا، جس کا روٹ ورڈ ہے درس، میننگ وہ جو پڑھائے، سمجھائے، علم کو سسٹم بنائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو ایسٹرونومی، جیومیٹری اور قلم کا علم دیا، اور سب سے پاپولر بات کپڑے سینا، ٹیلرنگ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے شروع کی۔ ان سے پہلے لوگ اینیمل سکن لپیٹتے تھے۔ اب سوچو ایک ایرا جس میں سیویلائزیشن بالکل زیرو ہے اور اچانک ایک نبی لکھائی پڑھائی انٹروڈیوس کرتا ہے۔ ہیومن سوسائٹی کا گریٹ لیبریٹنگ سسٹم ہی تھا جس کے بغیر کوئی سیویلائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو ادریس علیہ السلام انڈائریکٹلی ماڈرن سائنس کے گریٹ گرینڈ فادر بن جاتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ان کا مشن بہت ٹف تھا، کیونکہ شیس علیہ السلام کی نسل بھی کرپٹ ہو رہی تھی اور قابیل کی نسل آلریڈی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا میسج سمپل تھا، گناہ چھوڑ دو، علم سیکھو اور انسانیت پر رحم کرو۔ لیکن لوگ اکثر ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے۔ یہ وہ ایرا تھا جہاں لوگ چھوٹی جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔
इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको ऑर्गेनाइज किया। पहली सेटलमेंट्स, फार्मिंग प्लानिंग, राइटिंग फॉर ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी फॉर कैलेंडर एंड जस्टिस सिस्टम। लेकिन जहाँ लाइट होती है वहाँ अंधेरा भी हिलता है। काबिल की नस्ल करप्ट थी और स्ट्रॉन्ग हो रही थी और इदरीस अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को थ्रेट किया जा रहा था। और ये नबी जो सिर्फ इल्म के उस्ताद नहीं थे बल्कि अपनी कौम के डिफेंडर भी बन गए। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां इल्म जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा और हमने उनको बुलंद मुकाम पर उठाया। रिवायत के मुताबिक एक फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास बार बार आता था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और कुछ कहते हैं एक और फरिश्ता। इस फरिश्ते का काम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को रोज के अमाल का हिसाब सुनाना था। यहाँ एक स्ट्रेंज पॉइंट आता है। इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का वक्त जानने का बहुत शौक था। नबी थे, इल्म पसंद शख्सियत और हर चीज लॉजिकल। इसलिए उन्होंने एक दिन फरिश्ते से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल लोहे महफूज में ज्यादा लिखा जाए, लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा जिंदा रहना होगा। और फरिश्ते ने कहा, मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ जहाँ मौत का फरिश्ता होता है। और इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान तक सफर करने वाले पहले इंसान बन गए। और ये कोई फेरी टेल नहीं, ये हमारे दीन की ऑथेंटिक नरेशंस का हिस्सा है। इंसान ने 1961 में यूरी गगारिन को स्पेस भेजा, लेकिन 8000 साल पहले ही एक नबी आसमानों की तरफ जा चुके थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहीं अपनी रूह वापस अल्लाह के हवाले की। इदरीस अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में ये नरेशंस मिलती हैं। उन्होंने लोगों को तारीखों का इल्म दिया, कैलेंडर सिस्टम सिखाया, सूरज, चांद और सितारों की मूवमेंट स्टडी किए, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स बताए, राइटिंग को सिस्टम बनाया और टेलरिंग को आर्ट बनाया। मेसोपोटामिया, समर और इजिप्ट की अर्ली सिविलाइजेशन एग्जैक्टली यही नॉलेज यूज करती थी। यानी इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म इंसानी सिविलाइजेशन का रूट बन गया। उनकी वजह से शीस अलैहिस्सलाम का चेन रिवाइव हुआ, डार्कनेस का एरा रुक गया, रोशनी वापस आने लगी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा खामोश नहीं रहता। काबिल की नस्ल इविल डूइंग ट्राइब बढ़ रही थी। ये लोग वेपन्स बनाते, जुल्म करते और शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल को डिस्टर्ब करते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे रेजिस्टेंस की और अपनी कौम को प्रोटेक्ट किया। रिवायत के मुताबिक उन्होंने कुछ स्मॉल स्केल बैटल्स भी लड़ी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब जुल्म ज्यादा देखना शुरू किया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से माइग्रेशन की। ये इंसानी हिस्ट्री का पहला डॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन है। उनकी लीडरशिप साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों थी। उनके लोग कहते थे जिस कौम का लीडर इदरीस है उस कौम का मुस्तकबिल ब्राइट ही होगा। मगर ये खात्मा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनका इल्म एक गहरा राज बनकर दुनिया में फैला। मिस्र के पिरामिड से लेकर मेसोपोटामिया के मकबरों तक और इंडस वैली की पुरसरार बस्तियों तक एक नबी जिनका काम सिर्फ दीन नहीं बल्कि जमीन को सीधा करना, इंसानी सोच को ऑर्गेनाइज करना और सिविलाइजेशन को साइंटिफिक डायरेक्शन देना भी था। अब हम कहानी का वो हिस्सा खोलने जा रहे हैं जहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म अरेबिया से निकलकर मिस्र तक पहुंचता है और दुनिया की पहली साइंटिफिक सोसाइटी बन जाती है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये माइग्रेशन मिस्र के करीब एरियाज तक गया। यहाँ इंसानी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र में सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड इल्म सेंटर बनाया। कुछ हिस्टोरियंस इसे पहला मकतब कहते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हेवनली नॉलेज भी दिया, साइंटिफिक नॉलेज भी दिया और सोशल नॉलेज भी दिया। हेवनली नॉलेज में तौहीद, अमाल का हिसाब, फरिश्तों का मकाम और अखलाक। साइंटिफिक नॉलेज में एस्ट्रोनॉमी, टाइम मेजरमेंट, ज्योमेट्री, हर्बोलॉजी और हीलिंग। सोशल नॉलेज में अदल का सिस्टम, बिजनेस रूल्स, फैमिली एथिक्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, एक सिविलाइजेशन तभी ग्रो करती है जब टाइम मेजरेबल हो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला लूनर सोलर कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। उस कैलेंडर के फीचर्स 12 महीने, मून साइकिल की ऑब्जर्वेशन, सोलर मोशन का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड, हार्वेस्टिंग सीजन्स का मैप, फ्लड टाइमिंग्स, माइग्रेटिंग टाइमिंग, रिलीजियस इबादत का सिस्टम। नासा के हिसाब से मून साइकिल
बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, 29.53 डेज। इमेजिन करो इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले अंडरस्टैंड किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहली दफा नीडल्स और स्टिचिंग को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले लोग एनिमल की स्किन को लपेटते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने थ्रेड बनाया, वीविंग का सिस्टम दिया, कपड़ों का प्रॉपर डिजाइन सिखाया, यानी ये इन्वेंशन इंसानी कंफर्ट का फाउंडेशन बन गई। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दवाओं का नॉलेज दिया, यानी मेडिसिन का नॉलेज, विच हर्ब रिड्यूसेस फीवर, विच प्लांट हील्स वुंड्स, विच रूट हेल्प्स इन एनर्जी। उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर समझाना भी शुरू किया, सिंपल एनाटमी, सिंपल ट्रीटमेंट मेथड्स। उनका हीलिंग सिस्टम यूरोप से सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था। इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर सिर्फ इबादत का दौर नहीं था, ये वो वक्त था जब इंसान को जिंदगी सिखाई जा रही थी। भाइयों, इदरीस अलैहिस्सलाम सितारों को सिर्फ देखते नहीं थे, वो उनको समझते भी थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि रात की लंबाई क्यों बढ़ती है, चांद की शेप क्यों बदलती रहती है, सितारे क्यों मूव करते हैं और मौसम किस तरह चेंज होते हैं। ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी लेसन्स थे। और आज जब नासा ऑर्बिट कैलकुलेशन करती है और हम नील डिग्रेस टाइसन, मिकिया ओकाकू जैसे लोगों को स्पेस एक्सप्लेन करता देखते हैं, तो आप समझ जाओ ये फाउंडेशंस शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही आ रही है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिखाया कि इबादत में डिसिप्लिन और रोजमर्रा जिंदगी में सिस्टम, यानी दीन भी ऑर्गेनाइज और दुनिया भी ऑर्गेनाइज। ये वही फार्मूला है जो जापानीज, टर्किश और यूरोपियन सोसाइटीज फॉलो करते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को ट्रेनिंग दी, साथ से ऊपर उठकर उम्मत बनना, आपस का कोऑपरेशन, ईमानदारी और मेहनत, हुनर सीखना। वो कहते थे अच्छा इंसान वो है जो अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाए। आज की सिविल सोसाइटी का पहला नक्शा उनके दौर से ही आता है। मगर दोस्तों, हर रोशनी के बाद अंधेरा आता है और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत भी दो हिस्सों में बंटने लगी। एक अहले हक जो इल्म और इबादत पर रहे और दूसरे अहले फितना जो कायदे कानून तोड़ने लगे। ये वही लोग थे जो काबिल की नस्ल से थे। स्लोली दे बिगेन ड्रिफ्टिंग, म्यूजिक, डांस, इमोरलिटी, एरोगेंस, ये सब वापस जिंदा होने लगा। एक दिन इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में अकेले मशगूल थे। एक फरिश्ता नूर की शक्ल में उनके पास आया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और आपकी दुआएं कबूल कर ली। रिवायत के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब की इबादत उन बुलंद मुकाम पर करूँ जहाँ फरिश्ते करते हैं। फरिश्ता मुस्कुराया और कहा आइए मैं आपको ले चलता हूँ। और यहाँ वो कुरानी आयत जिंदा होती है और हमने उनको बुलंद मुकाम पर उठा लिया। इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी उम्मत के लिए एक आखिरी वार्निंग थी। नबी चला गया, अब लोग अपनी मर्जियों पर चल रहे थे और धीरे धीरे उनका जुल्म, उनका फसाद, उनका गुनाह जमीन को हिजोलने लगा। दोस्तों, ये वो स्टेज था जहां अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि इस कौम के लिए एक नया नबी भेजा जाए और अगर ना माने तो इन पर अजाब की मोहर लग जाएगी। ये नबी कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक दौर खत्म, एक नया दौर शुरू। सब्सक्राइब।